study Social Studies chapter number 4. First of all of you take out your books and open page number 21. So your chapter 4 is Major Landforms. Major means very big and landforms are the surface of the earth. There are so many surfaces you can see on the earth. For example, mountains, plateaus, plains, deserts, as well as the rivers. Some are very big, some are plains. Somewhere you can find out that there is lot of sand. Somewhere you can find that there is so much of water. So one by one today we will going to discuss all these 5 types of the landforms. Mountains. A mountain is a landform that rises high above its surrounding land. It is made of rocks and earth. Mountain क्या होते हैं? Mountain वो होते हैं जो कि land से काफ़ी हाई होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं. माउंटेन किस चीज़ के बने होते हैं? रॉक्स के बने होते हैं. यूजुअली माउंटेन्स आर मोर दैन 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. सी लेवल से इनकी हाइट क्या होती है? 900 मीटर्स अबव होती है, ऊंची होती है. माउंटेन्स वैरी इन हाइट एंड शेप. जो भी माउंटेन्स होते हैं सबकी अलग अलग हाइट होती है, अलग अलग शेप्स होते हैं. They have steep slopes and rounded or conical peaks. Students, जो mountains होते हैं उनके steep slopes, that means they have a slanting slope and rounded, कुछ एकदम round shape के होते हैं, कुछ conical means like this cone shaped, some are like this rounded shaped. And you know this slanting area is known as the steep slopes. Now, a group of mountains joined together is called a range or chain. जो mountains का group होता है उसको क्या बोलते हैं? Range और chain. Now, the 2 examples of the mountain ranges are Andes in South America and Rockies in North America. The lines of ranges form mountain belts which may extend for hundreds of kilometers. Now students, a group of mountains is known as the range. जब ये सब mountain एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सब all together हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? Mountain belts, जो कि बहुत ही दूर दूर तक फैले रहते हैं. It's extended for about hundreds of kilometers. The height and shape of mountains tells their age. जो mountain की height होती है और mountain की shapes जो होते हैं वो बताते हैं उनकी age. Young mountains like the Himalayas are high and have pointed peaks. Older mountains like the Aravallis have rounded peaks and are not so high. जो बहुत ही पुराने mountains हो जाते हैं उनकी कैसी peaks होती हैं? Rounded peaks होती हैं और वो ज़्यादा high नहीं होते हैं. Now, the importance of mountains. Mountain ranges are natural barriers. They provide protection against harsh, hot and cold winds. They also protect us from invaders. Now student, mountain ranges are natural barriers. That means barriers means restrict करना. Mountain ranges जो है वो रोकती हैं. किसको रोकती हैं?
बहुत ही गर्म हवा को रोकती हैं, ठंडी हवा को रोकती हैं और इन्वेडर्स को भी रोकती हैं। इन्वेडर्स मीन जो हमलावर होते हैं, जैसे कि जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं, उनको भी रोकते हैं माउंटेन्स। नेक्स्ट, rivers originate here and provide water for irrigation and other day-to-day needs of the people living near them। अब देखिए, जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं? माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती हैं और जो लोग माउंटेन्स के आसपास रहते हैं उन लोगों को भी बहुत ज़रूरत के सामान भी देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रीज़ होते हैं माउंटेन एरियाज़ पे, छोटे छोटे जो श्रब्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, पीपल की नीड्स के लिए, ज़रूरतें वो सब पूरी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, many mountain districts are famous for holiday resorts where skiing and mountaineering can be enjoyed. The cool climate in summer attracts many tourists. ना स्टूडेंट्स, जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं वो टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली इन द समर सीजन। सम ऑफ द माउंटेन प्लेसेस आर शिमला, कश्मीर, मसूरी। ओके, अब वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं? स्कीइंग एंड माउंटेनरी। स्कीइंग का मीनिंग क्या होता है? माउंटेन के ऊपर जो बहुत सारी स्नो होती है उसमें रनिंग करते हैं लोग। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? स्कीइंग। एंड माउंटेनियरिंग मीन्स क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन्स। Next, many mountains are rich in minerals. Rocks from mountains make excellent building material. ना स्टूडेंट्स, जो माउंटेन्स होते हैं उनमें और भी क्या चीज़ पाई जाती है? मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और माउंटेन के जो रॉक्स होते हैं वो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। Agriculture cannot be practiced on a large scale as the mountains have thin soil cover. जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा माउंटेन में नहीं हो पाता है लार्ज स्केल पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कि सॉइल की कवर होती, मिट्टी जो होती है बहुत ही उसकी पतली सी लेयर होती है। Due to unsuitable climate, shortage of land, difficulty in transportation, the region is thinly पॉपुलेटेड। जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम लैंड होता है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम लोग रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ आर अंडर द सी। Mauna Loa is one such mountain in the पैसिफिक ओशन। जो सबसे बड़ा माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है अर्थ में, वो अंडर द सी है, सी के अंडर है और उसका क्या नाम है? मौना लोआ। इट्स पीक फॉर्म्स एंड आइलैंड। उसकी जो पीक है वो एक आइलैंड फॉर्म कर रही है। आइलैंड क्या होता है? अ लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द फोर साइड्स। The Himalayas in Asia is the highest mountain range on land. लैंड में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक एशिया में कौन सी है? हिमालयाज है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो। जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हाईएस्ट पीक है जो कि कितने साल पहले हुई थी? 60 मिलियन ईयर्स अगो वो फॉर्म हुई थी। The second is the plateaus. A plateau is a highland area with a flat top. Plateau क्या होते हैं? एक ऐसे लैंड एरिया होते हैं जो कि लैंड से काफ़ी ऊपर होते हैं और इनका जो
ऊपर का पोर्शन होता है फ्लैट होता है, ठीक है, जो इनका टॉप होता है एकदम फ्लैट होता है, इसीलिए इनको और क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेबल लैंड. द सर्फेस ऑफ द प्लेट्यू इज ऑफन कट बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम. जो प्लेट्यूज का जो एरिया होता है वो किससे कट होता है, रिवर्स और स्ट्रीम से कट होता है. रिवर्स क्या होती हैं, नदी कहते हैं, रिवर्स होती हैं, ये रिवर है, और जो रिवर से छोटी छोटी नदी रिवर्स निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रीम. जो वाटर का फ्लो इधर से निकलता है छोटे छोटे एरिया में उनको कहते हैं स्ट्रीम्स. Some plateaus like the Deccan Plateau in India are large and extend to hundreds of kilometers. Some plateaus like the Plateau of Tibet are surrounded by mountain ranges from all sides. जो तिब्बत में प्लाट्यू है वो किससे सराउंडेड है, माउंटेन्स, उसके आसपास क्या है, माउंटेन की रेंजेस हैं. Plateaus are formed in almost all continents of the world. सभी जगह पे क्या पाया जाते हैं, प्लाट्यूज मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कोलोराडो प्लाट्यू इन द यूनाइटेड स्टेट, द बोलिवियन प्लाट्यू इन साउथ अमेरिका, द प्लाट्यूज ऑफ एंटार्क्टिका, अरेबिया, ईरान एंड द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना. The plateau of Tibet is the highest plateau in the world. सबसे बड़ा प्लाट्यू कौन सा है, plateau of Tibet, and is called the roof of the world. इसको एक और नाम से जानते हैं, roof of the world. Now the importance of plateaus. Low plateaus are often farming regions, while high plateaus are usually suitable for livestock grazing. जो छोटे छोटे प्लाट्यूज होते हैं, दैट मीन्स जो लैंड एरिया से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, उनको अक्सर किस लिए यूज़ किया जाता है, फार्मिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. उसी जगह पे जो हाई प्लाट्यूज होते हैं, जो लैंड से काफ़ी ऊंचे एरिया पे होते हैं, उनको किस लिए यूज़ किया जाता है, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग. जैसे कि हमारे हॉर्स वगैरह हैं, उनके खाने के लिए हो जाते हैं. वहाँ पे जो छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं वो सब उनके ईटिंग पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है, डैट इज़ यूज्ड फॉर द ग्रेजिंग पर्पस. Some plateaus are rich in mineral deposits, so mining is an important occupation in the plateau regions of the world. प्लाट्यूज में भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो माइनिंग के पर्पस के लिए भी प्लाट्यूज का जो रीजन होता है वो यूज़ हो जाता है. Third type of landform are the plains. Plains are broad, flat and low-lying surface of land. जो नॉर्मल लैंड्स होते हैं, फ्लैट सरफेस जो होता है, उनको क्या कहते हैं, प्लेन्स. प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स. द लैंड ऑफ अ प्लेन इज मोस्टली इवन. जो एकदम फ्लैट सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेन्स. जो एकदम बराबर का होता है, इवन मीन्स एक जैसा होता है. समटाइम्स इट मे बी स्लाइटली हिली. कभी कभी ये थोड़ा सा बस हिली होता है, नहीं तो नॉर्मल एकदम प्लेन सरफेस होता है. मोस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स. फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. जब रिवर्स का जो डिपॉजिट हो जाता है, साइड में जो सैंड जो डिपॉजिट हो जाती है, उससे क्या बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं. The river deposits sand, mud and silt that they carry on their banks. Banks means किनारे, रिवर के जो किनारे होते हैं उनको कहते हैं banks. These deposits form plains.
Plains are thickly populated as they are fertile because of the deposits by the river. जो भी plains होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा population होती है क्योंकि वो बहुत ही fertile रहते हैं, transportation वगैरह बहुत easy रहता है and life is easier as compared to that on the माउंटेन्स. और जो प्लेन्स में लाइफ जो होती है बहुत ही ईजियर हो जाती है, रहना बहुत ही ईजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू द माउंटेन्स. प्लेन्स में बी फाउंड अलोंग अ कोस्ट और एन आइलैंड. अब प्लेन्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? कोस्ट और आइलैंड में. कोस्ट क्या होता है? नदी का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर. एंड Island is an area that is surrounded by water on all the four sides. A coastal plain is a stretch of lowland along a sea coast which slopes towards the sea. जो भी sea के, नदी के किनारे के जो भी एरिया होते हैं, sea के पास के जो भी एरिया होते हैं, वो सब क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं. The Atlantic coastal plain is a good example of fertile and well-populated coastal plains. जो Atlantic coastal plain है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? प्लेन्स का, जहाँ बहुत ही ज़्यादा वो लैंड जो है बहुत ही फर्टाइल है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी पाए जाते हैं. It lies along the eastern shore of North America from Nova Scotia to Florida. Inland plains may be found at higher altitudes. अब इनलैंड प्लेन्स क्या होते हैं? ऐसे प्लेन्स होते हैं जो कि लैंड सरफेस से थोड़े से नीचे मिलते हैं. ठीक है. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स. Plains are areas that are usually well populated because of the soil and the terrain are good for farming. Plains में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. Agriculture becomes the major occupation. वहाँ पे लोगों का रहने का सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन, लोग वहाँ पे क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं. Roads and railways are easily built between rural towns and cities. Towns और cities में क्या easily मिल जाती हैं? Roads भी मिलती हैं और railways भी बहुत ही easily बन सकते हैं. Most of the big cities and towns are found in the plains. Large industries such as textile, automobiles, iron and steel have developed in the plains because of connectivity and transportation facility. सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ मिलती हैं? प्लेन्स एरियाज़ में. क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है और कनेक्टिविटी, एक दूसरे से इंटरैक्शन भी बहुत इजीली हो सकता है. Thick forests usually thrive on plains. In humid climates, grassland cover dry plains such as the Great Plains in the United States. यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह भी बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं. कोस्टल प्लेन्स और रीजन्स आर आइडल फिशिंग साइट्स. जो भी नदी का किनारा रहता है, कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है? ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा फिशिंग का ऑक्यूपेशन बन जाता है, फिशिंग साइट्स बन जाती हैं. The next is the desert. Deserts are barren lands that receive very little rainfall. डेजर्ट्स क्या होते हैं? एकदम बंजर लैंड होती है. बंजर एकदम, जहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी ट्री वगैरह नहीं ग्रो करता है. बैरन लैंड्स दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है. द रीजन हैज़ एन एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट. Now, arid means very dry type of climate.
द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. डेजर्ट्स में जो डेज होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं और जो नाइट्स होती हैं बहुत ही कोल्ड होती हैं ड्यू टू द सैंड. रेत जो होती है उसकी वजह से. सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन. जो सैंड स्टॉर्म्स होते हैं वो सभी सीजन में एकदम कॉमन रहते हैं. Sand dunes or hills of sand are its most common features. Most deserts have small areas of water where plants grow and people live. Such place is known as an oasis. कोई कोई जगह होती है ऐसी जहाँ की बहुत ही थोड़ा सा वाटर मिल जाता है. उसी एरिया में बस कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं और कुछ पीपल भी वहाँ पे रहते हैं. ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं? ओसिस. Like hot deserts, we also have cold deserts on the earth. जैसे कि हमको पता है कि हॉट डेजर्ट्स हैं हमारे अर्थ में, उसी तरह से कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं. सहारा इन अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. सबसे ज़्यादा हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा, जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका में है. कवरिंग द मैक्सिमम सरफेस एरिया अमंग ऑल अदर हॉट डेजर्ट्स. एंटार्क्टिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. और सबसे कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? कहाँ पे? एंटार्क्टिका. द प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड इज कॉल्ड ओएसिस. Is the river. A river is a natural channel, usually of fresh water, that flows towards an ocean, a lake, sea or another river. River क्या होती है? River मतलब नदी, जिसमें कि क्या मिलता है हमको? फ्रेश वाटर मिलता है. A river usually starts high up in the mountain. रिवर जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? माउंटेन्स से स्टार्ट होती हैं. एज इट फ्लोज इट कैरीज रेन वाटर, मेल्टेड स्नो एंड आइस फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स, लेक्स एंड सी. जब माउंटेन से फ्लो करती हैं, आती हैं रिवर्स, तो अपने साथ कौन कौन सा वाटर लेके आती हैं? रेन वाटर, मेल्टेड जो पिघली हुई आइस और स्नो रहती हैं वो भी माउंटेन से लेकर आती हैं. कहाँ लेके आती हैं? प्लेन्स में लेके आती हैं, लेक्स में लेके आती हैं और सी में लेके आती हैं. मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स फ्लो इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी लाइक एन ओशन, सी और लार्ज लेक. अब जो रिवर्स होती हैं वो फ्लो करती हैं और किससे जाकर मिलती हैं? ओशन से, बड़े बड़े समुद्र से जाके मिलती हैं. सी और लार्ज लेक. द एंड ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स माउथ. जहाँ पर रिवर्स जाके मिल जाती हैं उसको क्या कहते हैं? माउथ. नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट इज द जर्नी ऑफ अ रिवर. कहाँ से रिवर स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती हैं? देर आर 3 स्टेजेस, द अपर कोर्स, द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द अपर कोर्स. अ मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन. ज़्यादातर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? कहाँ से आती हैं? माउंटेन से आती हैं. In this course the river has very little water. जब वो माउंटेन से रिवर्स आती हैं तो उनके पास ज़्यादा वाटर नहीं रहता है, बट धीरे धीरे जब वो फ्लो करती हैं स्लोप से, मतलब कि जो स्लैंटिंग एरिया होता है वहाँ से जब धीरे धीरे आती हैं तो उनके पास धीरे धीरे वाटर ज़्यादा आने लगता है. इट गेन्स स्पीड एंड कट्स अ डीप वैली. वो क्या कट करते हुए आती हैं? वैलीज भी कट करके आती हैं. वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड एट दिस स्टेज. फर्स्ट स्टेज में स्टूडेंट्स क्या फॉर्म हो जाता है? वाटरफॉल. जब भी माउंटेन से वाटर जब गिरता है तो क्या होता है? वाटरफॉल फॉर्म हो जाता है. An example of this course
रिवर गंगा ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री। जो रिवर गंगा है वो कहाँ से आती हैं? गंगोत्री से आती हैं। एंड फ्लोज डाउन द स्लोप्स टिल हरिद्वार। और कहाँ तक उनका स्लोप्स जो होते हैं, कहाँ तक बहते हुए आती हैं? हरिद्वार तक बहते हुए आती हैं। नेक्स्ट, द मिडिल कोर्स। द रिवर enters the middle course as it enters the प्लेन्स। जैसे ही जो भी रिवर्स हैं वो जब प्लेन्स में आती हैं तो उनका मिडिल कोर्स या सेकेंड स्टेज कह सकते हैं स्टार्ट हो जाता है। एज द रिवर नाउ फ्लोज ऑन फ्लैट सरफेस द स्पीड लेसन्स। अब देखिए, जब माउंटेन से फ्लो करती हैं तो उनकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है वाटरफॉल के फॉर्म्स में, और जैसे ही वो प्लेन्स में आती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है लेसन्स, मतलब कि कम हो जाती है। द स्पीड गेट वेरी लेस। द रिवर नाउ मियांडर्स एंड फॉर्म्स लूप्स। मतलब कि जो रिवर होती है इधर उधर से कटने भी लगती है, ठीक है, और काफ़ी एरियाज जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, कर्व एरियाज भी फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि स्मॉल लेक्स फॉर्म हो जाती हैं। जैसे कि ये रिवर है, यहाँ से ये कटिंग हो रही है, यहाँ से ये कट हो रही है, कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं, ये स्मॉल स्मॉल वैलीज फॉर्म हो जाएंगी, लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स, रिवर गंगा हैज़ दिस कोर्स बिटवीन कानपुर एंड प्रयागराज। अब कानपुर और प्रयागराज क्या है? प्लेन्स हैं, तो इन्हीं के कानपुर और प्रयागराज के बीच में मिडिल कोर्स या सेकेंड स्टेज जो होता है गंगा रिवर का फॉर्म रहता है। द लास्ट इज द थर्ड स्टेज और द लोअर कोर्स। द रिवर एंटर्स द लोअर कोर्स एंड जॉइंस अ बिगर वाटर बॉडी। एग्जाम्पल सी। अब देखिए, फर्स्ट कोर्स में क्या था? माउंटेन से रिवर जो थी स्टार्ट हुई थी। सेकंड कोर्स में क्या था? रिवर्स जो थी प्लेन्स में आके फ्लो कर रही थी, बह रही थी। एंड द लास्ट इज द नाउ द रिवर विल गोइंग टू मीट द बिग सी। इसमें क्या है कि जो रिवर रहेंगी वो बड़ी वाटर बॉडीज से जाकर के मिल जाएंगी। The speed of the river is extremely slow and it divides many channels. This forms a delta, a triangular shape near the mouth of the river. अब देखिए, इस टाइम पे जो रिवर की स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। An example of this course is River Ganga forms a delta as it flows into Bay of Bengal. जो हमारी रिवर गंगा है वो कहाँ पे जाके मिल जाती हैं? किससे मिलती हैं जाके? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। इट्स अ वेरी बिग ओशन, ओके? Students, you know Bay of Bengal is a part of the Indian Ocean, okay? Now come to the points to remember. The earth is made of land and water. Earth किससे बनी है? Land से बनी है और water से बनी है। Landforms are the natural features of the earth. जो landforms हैं हमारे, landforms में क्या क्या आते हैं? Mountain, plateaus, plains, deserts, rivers. All these are the natural features of the earth. A mountain is a landform that rises high above its surrounding. जो land area से, जो अपनी surrounding से काफ़ी high होते हैं उनको क्या कहते हैं? Mountains. And yes, mountain are 900 meters high. A group of mountains is called a range. जो mountains के groups होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Range बोलते हैं या chain बोलते हैं। And lines of ranges form mountain belts. और जब काफ़ी सारी रेंजेस एक साथ मिल जाती हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑफ माउंटेन साथ में मिल जाते हैं रेंजेस, तो उनको क्या कहते हैं? माउंटेन बेल्ट्स। A plateau is also called a tableland. plateau को tableland भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो plateau का above surface होता है वो क्या होता है? एकदम flat होता है, टेबल के शेप में होता है। That is why it is also known as the tableland. Next, plains are called lowlands that have rich and fertile soil.
प्लेन्स को क्या बोला जाता है? लोलैंड्स बोला जाता है। और इनमें क्या होता है, काफ़ी सारा मिनरल्स मिलते हैं और बहुत ही इसकी फर्टाइल सॉइल होती है। फर्टाइल सॉइल कैसी सॉइल होती है? जहाँ पे प्लांट्स, जो ट्रीज होते हैं, प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। और प्लेन्स एरिया में एग्रीकल्चर जो होता है वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है। डेजर्ट्स आर बैरन लैंड्स दैट हार्डली रिसीव रेनफॉल। डेजर्ट्स में रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब कि बहुत ही कम रेनफॉल होती है। और जो डेजर्ट होती है वहाँ की लैंड कैसी होती है? बैरन लैंड होती है। बैरन मीन्स जहाँ पे प्रॉपरली प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकते हैं। आ रिवर पासिस थ्रू 3 स्टेजेस। रिवर जो होती है वो 3 स्टेजेस से पास होती है, द अपर कोर्स, द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स। ओके स्टूडेंट्स? Alright students, now I hope that you all have understood the topic, that is natural resources, very carefully. My dear students, please note one thing very important, that you will get questions from the mid of the chapter also. And students, please